A very good evening and a warm welcome to all of you to this session on thyroid awareness. I am Dr. Beatrice Ann, Associate Professor and Head, Department of Endocrinology at Nizam's Institute of Medical Sciences, Hyderabad, and I will be moderating today's session. As you're all aware, January is Thyroid Awareness Month, and Indian Thyroid Society, along with the Endocrine Society of India, endeavors to promote awareness regarding different thyroid disorders. From 3rd January onwards, we have been doing this through these sessions wherein we have brought in endocrinologists from across the country to talk about thyroid related issues. In today's session, we will be discussing about screening for thyroid disorders, that is, when to test oneself for thyroid problems. To discuss on this topic, let me invite our esteemed panelists for the day. Let me welcome Professor K.A.V. Subramaniam. Sir is Professor and Head, Department of Endocrinology at Andhra Medical College, Visakhapatnam. A warm welcome to you, sir. Thank you, Beatrice. I invite Dr. Sudeep K., who's Associate Professor and Head, Department of Endocrinology at Father Muller's Medical College, Hospital, Mangalore. A warm welcome to you, sir. Thank you. Hi, everybody. And let me welcome Dr. Archana Juneja, Senior Consultant Endocrinologist at Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, Mumbai. A warm welcome to you, ma'am. Thank you, Beatrice, and good evening, everybody. So we'll start our discussion today. But if you all have any questions, please do type in your questions and send them across. Our experts will answer them for you. So let me start today's discussion. So let me start with Professor Subramaniam, sir. So what are the common types of thyroid problems? So can you give us a brief overview? Beatrice, thank you for asking me. And I say देखते हैं समाज में thyroid problems are the most commonest. ऐसे हम क्या देखते हैं कि लोग स्वेलिंग आ गया नेक में ऐसे आते हैं, दैट्स कॉल्ड गोइटर. एंड ये तो बहुत पुराने ज़माने में एक कॉमनेस्ट एपिडेमिक डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड, वो तो एक है. दूसरा है थायराइड फंक्शन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. ये फंक्शन ज़्यादा कम होने में बहुत सा सिम्टम्स हो सकता है. जैसे लोग सोचते हैं कि ओबेसिटी हो गया तो थायराइड हो सकता है. वो कॉमनली ऐसे पेशेंट प्रेजेंट होता है हमारे पास, टेस्ट करते हैं उसके लिए. तो सो वो थायराइड कम होने की वजह से होता है. आई थिंक बाकी पैनलिस्ट डिस्कस करेंगे. और ये थायराइड का स्वेलिंग जो होता है नेक में, वो बहुत तरह का होता है. ये तो सिंपल आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से वो हो सकता है, नहीं तो वो थायराइडाइटिस नाम का एक डिसीज की वजह से भी हो सकता है. ये थायराइड की वजह से उसका फंक्शन भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. वो हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, ज़्यादा होने से कम होने से हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म. एंड वो स्वेलिंग और एक है, वो खतरनाक है कि मैलिग्नेंसी भी हो सकता है. तो स्वेलिंग है उसको टेस्ट करने से पता चल जाएगा वो मैलिग्नेंट या नॉन मैलिग्नेंट. सो मैलिग्नेंट में कैंसर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. बहुत बहुत अनकॉमन है, पर फिर भी वो तो देखना पड़ेगा हमारे लिए. Thank you, sir, for that very nice overview of the different sort of thyroid disorders that we see. So let me ask Dr. Sudeep, sir, when should one test for an underactive thyroid gland? This is a very important question. Basically, it's one of the commonest disorder, that is low thyroid. बहुत कम काम करते हैं थायराइड ग्लैंड. ये थोड़ा ज़्यादा है, मतलब एंडोक्राइन डिसीज में लाइक डायबिटीज जैसा है ये लो थायराइड का डिसीज भी. अप्रोक्सीमेटली 6 to 10% of the population may get affected, and more than that in specific population groups. So what we call it in the medical term is hypothyroidism, the low thyroid. So underactive gland. So the amount of hormone अभी एक ग्लैंड में कितना आ रही है वो बहुत कम होता है, शरीर में कम होता है. किस के लिए ये टेस्ट करना पड़ता है, मतलब सब लोगों को कर सकते हैं या कुछ लोग हैं उसको चूज करके करना है, वो डिसाइड करना है. एक थोड़ा सिम्टम्स है, क्लिनिकल सिम्टम्स है, मतलब we can think about thyroid being low in these particular patients groups.
like when patient is gaining weight, वजन ज़्यादा बढ़ता है और सूजन होता है शरीर में, या कुछ टायर्डनेस, बहुत फटीग होता है, काम कर सकता नहीं, बहुत नींद आ रही है, मोशन ज़्यादा नहीं चलता है, कॉन्स्टिपेशन है, और हफ्ते में 1 बार 2 बार और 3 बार ऐसा मोशन चलता है, बहुत कठिन होता है मोशन चलने के लिए, और सूजन आता है पाँव में या मुंह में। ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स में ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं, सिर्फ थायराइड के लिए आने की ज़रूरत नहीं। फिर भी ये सब सिम्टम्स आ गया तो थायराइड को टेस्ट करना पड़ता है। और कुछ कंडीशन है, अचानक आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रही है, अचानक आपका हार्ट बीट कम हो रहा है, और आपका किसी भी पेशेंट्स को हम देखा है कि किडनी का टेस्ट कभी चेंज होता है, क्रिएटिन थोड़ा बढ़ता है, ये भी थायराइड में हो सकता है। और आपको सोडियम कभी कम होता है, उस टाइम थायराइड को टेस्ट करना पड़ता है। बोलता है डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया, कभी कभी डिसइलेक्ट्रोलाइट्स कम होता है, उसके थोड़ा कनेक्शन है थायराइड की वजह से। ये कंडीशंस में भी आप थायराइड को टेस्ट करना है। कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर, हम बीपी में बोलता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर। कभी कभी थायराइड वालों को, लो थायराइड वालों को कभी कभी नीचे वाला नंबर ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये थायराइड का बीमारी को ठीक किया तो वो बीपी कम हो सकता है। तो कभी कभी ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को भी ये करना पड़ता है। सो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, हार्ट बीट का प्रॉब्लम, ये ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, ये सब कॉमन कंडीशंस है। फिर भी करेक्ट करने के लिए दूसरा दवा देने की जरूरत नहीं है, ये थायराइड का बीमारी है तो इसलिए हम थायराइड को टेस्ट करें। पहले है ये ज़माना था 3 डिकेड्स के पहले, 30 ईयर्स के पहले टेस्ट किया तो, आज टेस्ट किया तो 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट मिलता है। अभी 2 घंटे में, 1 घंटे में थायराइड का रिपोर्ट मिलता है। और दूसरा है थायराइड का टेस्ट का पहला स्क्रीनिंग टेस्ट हम बोलते हैं TSH टेस्ट। ये बहुत आसानी है, अभी सब जगह में मिलता है और 1 घंटा में रिपोर्ट मिलता है आपको। ये नॉर्मल आ गया तो एक थायराइड बीमारी होने का चांस बहुत कम होता है। इसलिए ये थायराइड स्क्रीनिंग टेस्ट, ये लो एक्टिव, पर्टिकुलरली एक्टिविटी कम है तो ये टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट भी आया है, और ट्रीटमेंट भी आसानी है। और कुछ लोग हैं महिलाओं का, मतलब मेंसेस का प्रॉब्लम होता है, मेंसेस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कभी गैप ज़्यादा हो सकता है, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। और एक लोग हैं ये शादी के बाद बच्चा नहीं होता है, इनफर्टिलिटी बोलता है। ये थायराइड करेक्ट करने के लिए ये चांसेस करेक्ट करने के बाद ये चांसेस ज़्यादा होता है उसको प्रेग्नेंट आने के लिए, और बहुत आसानी ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट में आपको प्रेगनेंसी होने का चांसेस है। सो इनफर्टिलिटी, मेंसेस का प्रॉब्लम, ये सब लोगों को भी हम थायराइड को टेस्ट करते हैं। और एक ग्रुप है मतलब बच्चों का, बच्चों मतलब हाइट नहीं बढ़ता है और मेमोरी को थोड़ा कम है, स्कूल का परफॉर्मेंस कम होता है, ऐसा लोगों को कभी कभी थायराइड की वजह से ये सब हो सकता है। थायराइड टेस्ट करके वो ठीक करने से वो अच्छा हो सकते हैं। सो जनरली इफ यू सी, यू कैन टेक ऑल द पॉपुलेशन फ्रॉम चिल्ड्रन टू अडल्ट्स, यू कैन चेक द थायराइड। तो रिकमेंडेशंस है, सब लोगों को आप कर सकते हैं, फिर भी एक कम्युनिटी में जाकर कर सकता है नहीं, उतना ज़रूरत नहीं है। अभी रिकमेंडेशन आ रहे हैं, मतलब 35 एज के बाद सबको, सब लोगों आपको क्लिनिक में आता है तो एक बार कर सकते हैं। कभी किसी भी रिकमेंडेशंस है 50 एज के बाद सब लोग आपको देखने के लिए आते हैं, उस टाइम एक थायराइड को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो अभी उतना महंगा नहीं। और ये सब मैं प्रॉब्लम्स बोला, ये कोलेस्ट्रॉल का, बीपी का, पल्स का प्रॉब्लम या मेंसेस का प्रॉब्लम, ये सब लोगों को आप करना ही पड़ेगा। So generally speaking, there are specific populations where non-specific symptoms are there, but still you can do the test because you are not having a costly test nowadays. And the correction of the thyroid disorder is very easy, very acceptable, non-complicated, very simplified. So it's thinking of thyroid in many of these conditions is good. And sometimes age-wise also we can separate and see whether this particular population, when they're coming to a hospital for some other reason also, you can do the thyroid test. Thank you, sir. So Dr. Sudeep had given us a very nice overview about an underactive thyroid gland and what happens, what are the symptoms and features of an underactive thyroid gland, and when you need to test yourself when you're suspecting an underactive thyroid gland. So we'll go over to Dr. Archana and ask her, when should one test for an overactive thyroid gland? Yeah, thank you, Beatrice, for that question. Now, the symptoms of overactive gland, which we call in medical language as hyperthyroidism, is exactly opposite of what Dr. Sudeep has said in terms of hypothyroidism. मतलब आपके हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स बिल्कुल
विरुद्ध होंगे जो डॉक्टर सुदीप ने हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स बताए। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, बिना कोई कारण, बिना कोई कोशिश किए हुए वजन घटने लगेगी, भूख ज्यादा लगती है, खाना ज्यादा खाओगे आप फिर भी वजन घटने लगता है। साथ साथ में बेचैनी, एक अजीब तरीके से बेचैनी शुरू हो सकती है, घबराहट जो हम पैल्पिटेशंस बोलते हैं, जहाँ पर आपके हृदय के हार्ट बीट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो वो वजन कम होना, थरथराहट, कंपन, और गर्मी नहीं सहन होती है। जैसे स्त्रियां किचन में काम करती है, उनको गैस के सामने खड़े होके काम करना मुश्किल हो जाता है, पसीने ज़्यादा छूटने लगते हैं। तो हीट इंटॉलरेंस, palpitations, restlessness, trembling, these are all the common symptoms of hyperthyroidism. Also, increased bowel habits. Now, Dr. Sudeep talked about constipation with hypothyroidism. In hyperthyroidism, you will have the exact opposite, that is increased bowel motions. It is not watery diarrhea, but it's just that people go to the bathroom more frequently, and this will also lead to weight loss. Along with that, anybody who has a goiter, Dr. Subramaniam and Dr. Sudeep both have said that anybody who has a neck swelling, मतलब जिन्हें भी गले में सूजन है, उनको थायराइड की जांच जरूर करना चाहिए, देखने के लिए ये ओवर एक्टिव है कि अंडर एक्टिव है। तो ये हो गए आपके कॉमन सिम्टम्स। स्त्रियों में मासिक पाली का गड़बड़ होना, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में मासिक पाली डिले हो जाते हैं, ब्लीडिंग कम हो जाती है, बट इनफर्टिलिटी के चांसेस भी हो जाते हैं, मतलब बच्चा रुकता नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में भी थायराइड की जांच करना ज़रूरी होता है। बच्चों में भी अलग अलग तकलीफें होती है। बच्चों में कंसंट्रेशन कम होने लगता है, वो ज़्यादा बेचैन होते हैं, ज़्यादा नटखट हो जाते हैं, तो और वज़न घटने लगता है। तो ये सब सिम्टम्स जब भी हमको नज़र आती है या आपके खुद के शरीर में आपको लगे कि अचानक बिना कोई कारण ये सब तकलीफ हो रही है, तो आपको थायराइड की जांच ज़रूर करना चाहिए, देखने के लिए कि आपकी ग्रंथि ज़्यादा तो नहीं काम कर रही। एक और सिम्टम जो रह गया, आंखों का बढ़ना, मतलब आंखें बड़ी हो जाती है। कोई कोई लोगों में देखा रहेगा हाइपरथायरॉयडिज्म की, उनकी आंखें बड़ी हो जाती है, जैसे फ्रॉग आइस बोलते हैं। वो कभी कभी एक आंख से हो सकती है, कभी दोनों आंख भी हो जाती है। तो कोई बिना कोई कारण अगर आंखें बड़ी होने लग गई तो हमको थायराइड के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और रेयर कंडीशंस होते हैं जहाँ पर मसल वीकनेस, जैसे यूजुअली हम न्यूरोलॉजिकल केसेस में देखते हैं जहाँ पर अचानक से मसल्स की ताकत कम होती है, पेशेंट्स को चलना मुश्किल हो जाता है, बैठ के उठना मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशंस में भी हाइपरथायरॉयडिज्म की सोच सकते हैं। पर आम तौर पे आप लोग को याद रखने के लिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि बिना कारण की वजन कम होना, घबराहट, पसीना छूटना, कंपन होना और बाथरूम भर जाना, ये सब सिम्टम्स आपके हाइपर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड की वजह से हो सकती है। Thank you, ma'am. We have now heard about an overactive as well as an underactive thyroid gland. So, Dr. Subramaniam sir, tell us what tests should be done when we suspect any of these disorders, and are there any prerequisites for testing, like do's and don'ts when you test for thyroid disorders? थैंक यू बेट्रिस। डॉक्टर सुदीप एंड डॉक्टर अर्चना ने अच्छी तरह बताया था वो सिम्टम्स कौन कौन सा होता है अंडर थायराइड में, ओवर एक्टिव थायराइड में। एंड उसके अलावा वैसे ही टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए बिल्कुल आते हैं, और अभी तो पूरा पैनल आ रहे हैं, सो इसीलिए वो भी टेस्ट होता रहता है। फिर भी जैसे एक पेशेंट को सिम्टम्स होता है थायराइड का, उसको कॉमन टेस्ट जो करते हैं T3, T4, TSH। सो थायराइड से निकलता है T4, थोड़ा सा T3, एंड उसके वजह से TSH इन्फ्लुएंस होता है। सो तीनों टेस्ट करते हैं लोग, उससे ज़्यादा काम कर रहा है थायराइड, नहीं तो कम काम कर रहा है थायराइड पता चलता है। उसमें से TSH मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये जब थायराइड कम काम करता है TSH बढ़ जाता है, उसके साथ थायराइड से जो निकलता है T4 एंड T3 वो दोनों कम होता है। दूसरे ऑपोजिट एंड में जब थायराइड का फंक्शन ज़्यादा है TSH कम होता है और T4 एंड T3 ज़्यादा होता है। ऐसे एक कॉमन जो टेस्ट है वो ऐसे बताते हैं।
बट टेस्ट का जो रिपोर्ट है उसमें से बहुत सा डिफरेंसेस होता है। सो उसमें से ये जो T4 करते हैं वो टोटल T4 है। ये टोटल T4 बहुत सारी प्रॉब्लम से इन्फ्लुएंस हो जाता है। सो इसीलिए अभी तो लोग फ्री T4 कर रहे हैं। ये फ्री T4 के इम्पॉर्टेंस ये कि ब्लड में ये जो एल्बुमिन का ग्लोबुलिन का जो चेंजेस होता है वेरियस कंडीशंस में, उससे ये इन्फ्लुएंस नहीं होगा। स्पेशली पीपल जो यूज कर रहे हैं कि सर्टेन ड्रग्स, उसमें से चेंज होता रहता है T4, वो उस कंडीशंस एंड ऑफ कोर्स कंजेंटल कंडीशंस भी है, उसमें भी ये आल्टर होता रहता है T4। सो इसीलिए अभी तो लोग फ्री T4 एंड सेरम T6 करने के लिए कर रहे हैं। पर T3 का भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो थायराइड ओवर एक्टिव है, ज़्यादा होता है, उसमें T3 वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओनली T3 टॉक्सिकोसिस एक है, वहाँ पे T3 लेवल्स ज़्यादा रहता है और T4 नॉर्मल रहता है, ऑफ कोर्स TSH लो रहता है। सो हियर वो जो हमारा डॉक्टर्स जो हैं उसको अंडरस्टैंड ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए पेशेंट्स को भी कि TSH जब बढ़ता है और T4 कम होता है, लोग सोचते हैं ये क्यों बढ़ गया है, वो क्यों कम हो गया। सो मोस्टली पेशेंट्स वही डाउट पूछते रहते हैं, कैसे कम हो गया, ये कम हो गया, आप डोज क्यों बढ़ा रहे हैं, ये ज़्यादा हो गया, डोज क्यों कम कर रहे हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। सो ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है, TSH बढ़ता है और T4 कम होता है। सो दिस इज व्हाट I say we have to understand. So ये तो फंक्शन का टेस्ट है, यूजुअली हम करते हैं। कभी कभी ये TSH जो है हम देखते हैं वो 10 यूनिट से कम रहता है। वो 10 यूनिट से कम रहने से उसका तो हम जानना चाहते हैं उसको ट्रीटमेंट देना है या नहीं। उस कंडीशंस में हम करना है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट का जरूरत है क्योंकि ये एंटीबॉडी से हमें पता चलता है पेशेंट का डिसीज क्या है, वो थायराइडाइटिस है, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है और दूसरा है। सो उससे पता चलता है, इसीलिए वो एंटीटीपी करते हैं। बट लोग हर टाइम एंटीटीपी करते रहते हैं, बट उसका जरूरत नहीं है, सिंगल टाइम करते हैं। करने का जरूरत है कि ये डिसीज का इटियोलॉजी ऑरिजिन क्या है उससे पता चलने के लिए। दूसरा मानना है कि ये टेस्ट करने से ये TSH लो होने से भी कभी कभी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो इसी तरह का टेस्ट ये फंक्शन के बारे में करते हैं। बाकी टेस्ट भी है बट वो तो इतना ये फंक्शन के बारे में ये टेस्ट करने का जरूरत उतना नहीं है। सो थैंक यू Beatrice and thank you very much. Thank you, sir. In the same lines, there's also an audience question for you. What is the accuracy of the screening tests? So स्क्रीनिंग का एक्यूरेसी जो होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द लैब। पहले जो लैब हो जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हैं और लैब का ऑथेंटिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे लैब्स में मशीन रहता है, बट मशीन भी इम्पोर्टेंट है, बट मशीन में जो कैलिब्रेशन होता है, स्टैंडर्ड्स रखते हैं, कितने दिन में रखते हैं, कितने दिन में करते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है। सो आप तो स्टैंडर्ड लैब से टेस्ट करवाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो तो एक है। दूसरा है एक्यूरेसी जब मानते हैं वो बहुत सा लैब, एक लैब में टेस्ट करते हैं TSH आता है 6, दूसरे लैब में आता है 8। सो लोग पूछते रहते हैं सर इतना क्यों डिफरेंस आ गया। सो ऐसे ये जो वैल्यू होता है वो कुछ रेंज में होता है। सो 6 और 8 के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है एंड वरी होने की जरूरत नहीं है, बट बहुत सा मरीजों इसके लिए वरी होता रहते हैं। सो दैट्स ट्रू। एंड जो एक्यूरेसी जो है आप टेक्निकली पूछने से सेंसिटिविटी होता है, अल्ट्रा सेंसिटिव एस्से एंड सेंसिटिव एस्सेस। सो वो तो उसका मानना है कि वो डॉक्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो सेंसिटिव एस्से से हमें पता चलता है जितना लो वैल्यू है उससे क्या फर्क पड़ता है। सो उससे ज़्यादा टेक्निकल का प्रॉब्लम है आई थिंक। उसे कुछ ऐड करना चाहते हैं Beatrice, प्लीज यू कैन ऐड। Yes, sir. That well said. And we've been talking about overactive and underactive thyroid gland generally in all population. But
there are certain subgroups which deserve more attention when it comes to thyroid disorders. And one such subgroup would be pregnant women. So Dr. Sudeep, can you tell us why is it important to screen all pregnant women for thyroid disorders? And our audience would also like to know what are the recommendations for thyroid screening in early pregnancy? So I think it will be covered the same question. Thing is, like rightly what you told, pregnancy is one of the important subgroup. Actually, it's the most important subgroup that comes as far as the thyroid disorders are concerned. क्योंकि वो both माँ और गोद में बच्चा है ना, दोनों को भी affect कर सकते हैं. If you are not treating the thyroid disorder, both the mother can get affected, the child can get affected. What are the usual problems you see in the mother is they can have spontaneous abortions or sometimes stillbirths. And they can have a blood pressure problem, eclampsia, pre-eclampsia, and sometimes bleeding. बच्चा पैदा होने के बाद bleeding ज़्यादा हो सकता है. चांसेस थोड़ा ज़्यादा है जनरल पॉपुलेशन में, नॉर्मल थायराइड वालों को ये कंपेयर करने से ये ज़्यादा है. दूसरा है बच्चों का, मतलब गोद में बच्चा वो फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी द चाइल्ड डजंट प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस नहीं करता है, बच्चा नहीं प्रोड्यूस करता है थायराइड. थायराइड का हार्मोन का ग्लैंड सिर्फ तीसरा महीने के बाद धीरे धीरे आता है. ग्लैंड डेवलप होने के बाद वो प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं, और 6 महीने के बाद अंदर गोद में वो थायराइड का प्रोडक्शन, हार्मोन का प्रोडक्शन बच्चों का खुद ही वो बच्चा प्रोड्यूस करता है. फिर भी फर्स्ट 6 months इट्स फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द mother's thyroid hormone status. So the mother is having a low thyroid, the hormone is not enough for the child to develop. So what is the consequence? ऐसा हार्मोन नहीं मिला तो बच्चों का, मदर का हार्मोन होना चाहिए, वो नहीं मिला तो बच्चों का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट कम हो सकता है. There is a possibility that the nerves may get affected, and it has various consequences. There are some children who can have some congenital anomalies, but most of the time it is brain development which can affect in different ways, particularly if not detected even after delivery. But during pregnancy, it's better to avoid a low thyroid in the mother so that the child gets adequate thyroid hormones. So बच्चे को क्या क्या मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, वो मिलना ही पड़ेगा. इसलिए पहला 6 महीने वो बच्चों को नहीं है ना वो थायराइड हार्मोन, वो हम देना पड़ता है. माँ को नहीं तो माँ को कम है तो हम ज़्यादा देना पड़ता है. So it's very important that we prevent a preventable mental retardation. That's what we called as a important epidemiological problem. We have to treat the mother so that we are preventing neurological developmental problem in the child. The other thing is we have to know is thyroid is already I have told you, thyroid disorder is a very easily treatable one, and the diagnostic tests are much more simpler than what it was. And we have got clear-cut guidelines, even though there are some confusions or some recommendation changes between organizations. Generally, we are now having a clear-cut plan. So, किसी भी disease where you are having a clear-cut this one, and we are having a good treatment without complication and without side effects, it's better to treat. And thyroid disorder in pregnancy is one of them. Third thing is, thyroid disorder is very common in general population. So, particularly compared to males, females are much more. महिलाओं को ज़्यादा आता है, मर्द को कंपेयर करने से महिलाओं को ज़्यादा आता है. 9:1 or 9:2 is the ratio where the female population is affected. And good number of them is in the reproductive age group. And usually we used to tell that after age 50, the thyroid disorder will be much more. You screen more of them. But now we are having younger generations who are getting thyroid because of so many reasons. We are getting the autoimmunity being more. So the likelihood of women in the reproductive age group getting a thyroid disorder, it may not be frank thyroid disorder. We call as subclinical thyroid disorders that also requires treatment during pregnancy. So it is very important for us to recognize this and treat it, because if a full treatment is given, you are not going to have any difference between the mother who has a thyroid problem and the mother who didn't have a thyroid problem. The outcomes nearly becomes equalized by just giving one tablet. Now, coming about talking about the two types of disorders. One is the high thyroid disorder and low thyroid disorder. In pregnancy, we'll try to treat even a mild low thyroid disorder. थोड़ा भी mild है तो low thyroid disorder को treat करना ही पड़ता है. A mild high thyroid disorder को उतना treatment कभी-कभी देने की जरूरत नहीं पड़ता है. So it has to be clarified whether the patient is having low thyroid disorder or high thyroid disorder. And sometimes during the
first visit to the gynecologist, there may be a panel like what Dr. Subramani told. There may be a panel of tests run by the laboratory, and incidentally, even without intention, you'd have got a thyroid test, and the thyroid test comes abnormal. Why I'm talking about this is this thyroid test without having a thyroid disorder. थायराइड बीमारी के बिना कभी कभी फर्स्ट 3 महीने में महिलाओं का ब्लड का रिपोर्ट चेंज हो सकता है. इसलिए ये सब लोगों को ये ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है. ये देखना पड़ता है कभी कभी, पर्टिकुलरली हाई थायराइड जैसा आपका रिपोर्ट में आ सकता है प्रेग्नेंट लेडीज को. इसको ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं, जस्ट देखना पड़ता है और फॉलो अप करना पड़ता है. इसीलिए और कुछ लोगों को फैमिली में थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ लोगों को गॉइटर कभी कभी हो सकता है, और पिछले 3 साल या 4 साल के पहले थोड़ा थायराइड का प्रॉब्लम डॉक्टर ने बोला था, पेशेंट में नहीं काम किया, टेस्ट किया. इसलिए a common disorder मतलब 7 to 10% of the reproductive age group can be affected if you do a screening of general population. So definitely it is very important for us to screen for thyroid disorder all the pregnant women. Thank you, sir. Our audience would also like to know whether thyroid screening should be done in non-pregnant women who are asymptomatic. You told us about the pregnant women. So what about the non-pregnant women? I think it's the first question had that answer. I'll just repeat it. Anybody who is having symptoms, we are going to check, even though the symptoms are not specific. Second thing is, in asymptomatic female, I told you, you go for something else. A heart checkup, there is a pulse rate is less. The patient did not have symptoms, but you find out something, the cholesterol is high, or the creatinine is slightly abnormal, or the BP is going up, the doctor has found out. And the patient did not go to the doctor for symptoms. They went for general health checkup. You mentioned the asymptomatic patients. There also there is a need for thyroid test. And second thing is somebody who is found to have a goiter, or somebody who is having another autoimmune disease. For example, in skin department, they can go with vitiligo. चमड़ा का प्रॉब्लम है कुछ लोगों का, विटलिगो बोलता है, उस लोगों का थायराइड का बीमारी आने का चांस है. सो दे डिडंट हैव थायराइड प्रॉब्लम बट को एक्सिस्टिंग प्रॉब्लम. थायराइड वालों को कुछ बीमारी है वो अलग होता है. स्पेशल टाइप का डायबिटीज भी आ सकता है, टाइप 1 डायबिटीज, स्पेशल टाइप का स्किन का प्रॉब्लम आ सकते हैं विटिलिगो, स्पेशल टाइप का और कुछ मेंसेस का प्रॉब्लम भी आ सकता है. इसलिए वो दूसरा प्रॉब्लम के होने के टाइम थायराइड को क्लासिकल सिम्टम्स होने की जरूरत नहीं. इस टाइम भी हम थायराइड को टेस्ट करते हैं. एसिम्प्टोमेटिक और non-thyroid disease also we can test the thyroid. Then one more important thing I forgot to mention is a psychiatric problem. Sometimes depression or some of the psychiatric illnesses, it directly doesn't relate to thyroid, but then treating thyroid will improve the quality of life of the particular. For example, the patient has depression and also having low thyroid. Treating the thyroid will improve the depression of the patient, and it's mandatory for us to make sure that thyroid is tested. And sometimes medications, the patient is on some medications which is totally not to do anything with the primary secondary illness, but sometimes it can affect the thyroid functions. थायराइड का बीमारी कभी कभी दवाइयों से हो सकता है. थायराइड का बीमारी कभी साइकेट्री ट्रीटमेंट में भी हो सकता है. लिथियम एक ड्रग है, इसमें थायराइड का बीमारी आ सकता है. कभी हार्ट का बीमारी के लिए देता है डॉक्टर अमियोडारोन. ये भी थायराइड को टेस्ट को तो कुछ चेंज कर सकते हैं. कभी कभी थायराइड को ग्लैंड का बीमारी नहीं होता है, फिर भी थायराइड का टेस्ट का थोड़ा उल्टा हो सकता है दवाई की वजह से. उस टाइम भी हम वो देखना पड़ता है. इसीलिए it's a large group of people who ultimately end up with thyroid test taking one or the other reasons, even though they don't have the classical symptoms of thyroid disease. Thank you, sir, for that very extensive and very clear answer. So we've been talking about a subgroup, that is pregnant women. There is another subgroup which also deserves a lot of attention when it comes to thyroid disorders, and that is children. So Dr. Archana, can you tell us, can children first of all develop thyroid disorders, and when should we screen children for thyroid disorders? That's a very important question, Dr. Beatrice. And yes, the answer is yes. Even children can develop thyroid disorders. Now, children means actually even newborn babies can be born with thyroid disorders. मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि बच्चों में कैसे थायराइड हो सकता है. पर हाँ, सच्चाई तो यही है कि ये थायराइड की जो प्रॉब्लम है कोई भी उम्र के लोगों को हो सकते हैं, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक. तो चिल्ड्रन बोले तो जैसे न्यूबॉर्न बेबीज में भी थायराइड की तकलीफ हो सकती है.
ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना थायराइड के जन्म लेते हैं, मतलब उनकी ग्रंथि बनी नहीं रहती है, या उनकी बनी रहती है ग्रंथि लेकिन वो मैच्योर नहीं होती है, तो हार्मोन्स नहीं बना पाती है। तो ये नवजात शिशु में भी ये थायराइड की शिकायतें पकड़ी जा सकती है, और ये पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन्स, जैसे डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा, कि ये बेबी के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और शुरुआत के जिंदगी के पहले 3 वर्ष जो होते हैं बच्चों के, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की बढ़ोतरी के लिए। मेंटल माइलस्टोन्स, फिजिकल माइलस्टोन्स, मतलब बच्चा बैठेगा, खड़ा होगा, बात करेगा, हंसेगा, जो इंटरैक्शंस होती है, जो मेंटल एबिलिटी होती है, थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए। तो इस पीरियड में थायराइड के लिए जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि हर नवजात शिशु का जन्म होते ही पहले 3-4 दिन में थायराइड की जांच होना ज़रूरी है। हाँ, वो एक ब्लड टेस्ट है, एक छोटी सी सुई लग के अंगूठे का 1 बूंद खून लगता है उस थायराइड की जांच करने के लिए, बट ये बच्चे के लिए ज़िंदगी भर की देन होती है। क्योंकि अगर इसमें समझो हमने पकड़ा कि भाई थायराइड की शिकायत वाकई में बच्ची में है, तो उसको समय पे दवाई शुरू करने से बच्चा या बच्ची बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा। सो जल्दी पिकअप, अर्ली diagnosis and early treatment is very important for all newborn babies. That's why newborn screening is actually mandatory all across the world. In India, we are still coming to awareness about it, but at least at our level, let us start building the awareness that every newborn baby in this country should have a thyroid screen. It is not only for only the babies who are born to mothers with thyroid disorders. ऐसे नहीं कि जिनकी माँ को थायराइड है उसी बच्चे को थायराइड का जांच करना चाहिए, नहीं, ये नॉर्मल माओं को भी कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी थायराइड बनती नहीं। That's why it is universal newborn screening is recommended all across the world. Now after the newborns, then we come to the children. So children मतलब उसके बाद जब भी 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल के कोई भी उम्र के बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम, तकलीफें शुरू हो सकती है। Now, अभी तक हमने जो समझा है, थायराइड की शिकायत 2 तरीके की होती है। आइदर उनकी ग्रंथि ज्यादा काम करती है, जिसको हम हाइपर एक्टिविटी, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, या ग्रंथि कम काम कर सकती है, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोल सकते हैं। हमें लगता है ये तकलीफ सिर्फ अडल्ट में होती है, बट सच्चाई ये है कि ये हाइपो और हाइपर दोनों भी बच्चों में हो सकते हैं। हालांकि हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा कॉमन होता है। तो इसको हम कैसे निगरानी रखेंगे इस पर? बच्चों की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस, जैसे स्कूल जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, हर साल वो पास हो रहे कि नहीं, उनके जो मार्क्स मिल रहे हैं स्कूल में वो बराबर से चल रहे हैं कि नहीं उम्र के हिसाब से, वो ज़रूरी है। अगर कहीं उनके मार्क्स गिरने लगे, घटने लगे, या बच्चा स्कूल में ध्यान नहीं दे पा रहा है, आप तो बोलेंगे कोई बच्चा ध्यान नहीं देता, लेकिन हाँ, अगर ध्यान देते हुए उनकी कंसंट्रेशन पूरी बट जच नहीं रही, मतलब इतना पिकअप नहीं हो रहा जितना वो पहले कर पाता था, तो फॉलिंग एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, फॉलिंग मेमोरी, falling concentration in a child who was previously normal, then you should think of thyroid disorder for that child. Also, the other important thing which Dr. Sudeep has already mentioned is height. जो बच्चे छोटे कद में होते हैं, ना ऑब्वियसली परिवार वाले सब छोटे हैं कद में, तो बच्चा छोटा होना अनिवार्य है, बट अगर सब अडल्ट सब नॉर्मल है परिवार में, और ये बच्चा एक है जो बढ़ नहीं रहा है बराबर से, तो हमें उसमें थायराइड की शिकायत के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और ऐसे बच्चों को जहाँ पर उनकी कद बराबर बढ़ नहीं रही है, उनकी थायराइड की जांच तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स एंड द सिंपलेस्ट ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स। I mean, I wouldn't say curable, but I would say definitely treatable। और एक बार उनकी ट्रीटमेंट करनी शुरू कर देंगे हम, तो जैसे मैंने कहा, लाइफ पूरी नॉर्मल तरीके से वो जी सकते हैं। अगर थायराइड की वजह से उनकी कद बढ़ना कम हो गई है, तो अगर दवाई शुरू करते हैं हम समय पे, तो हाइट उनकी बिल्कुल अपने माता पिता के अनुसार जितना होना चाहिए वो उनकी पकड़ लेगी। वैसे ही अगर मेंटल डेफिशिएंसीज होती है और थायराइड की शिकायत पकड़ गई, तो फिर उसको ट्रीटमेंट करने से वो मेंटल एबिलिटीज भी बराबर से पिकअप कर लेते हैं। So these are the common symptoms, that is failure to gain height and falling academic performances. Also poor memory, poor concentration.
there are some जेनेटिक कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम आपने सुना रहेगा या टर्नर सिंड्रोम, कोई जेनेटिक कंडीशंस होते हैं जहाँ पर थायराइड की शिकायत इन बच्चों में ज़्यादा होती है। तो कोई भी बच्चा जिनको डाउन सिंड्रोम है उनको तो थायराइड की शिकायत करना है, और शायद हर 2 साल में उनकी थायराइड की जांच भी रेगुलरली करनी पड़नी चाहिए। तीसरी बात होती है बच्चों में, जैसे लड़कपन जब भी शुरू होता है, प्यूबर्टी जो हम प्रोसेस बोलते हैं। सो अगर थायराइड की शिकायत है तो प्यूबर्टी जल्दी भी आ सकती है या डिले भी हो सकता है। तो कभी भी जैसे बच्चा जल्दी बड़ा हो गया या लड़की का मासिक जल्दी, जैसे समझो हम कभी-कभी बच्चे देखते हैं 5 या 6 साल में उनकी मासिक शुरू हो जाते हैं, जो बहुत ही अबनॉर्मल है। तो उन बच्चों का भी थायराइड का जांच शुरू करना ज़रूरी होता है। और ऐसे भी होते हैं जो बच्चे जो 13, 14, 15 होने के बावजूद भी उनके ग्रोथ के जो प्यूबर्टी, जो मैच्योरेशन जो होता है, उसकी साइंस नहीं दिखाई देते। तो उन बच्चों में भी थायराइड का जांच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब में यही एक प्रिंसिपल है कि अर्ली डायग्नोसिस, स्क्रीन एनी सॉफ्ट सिम्टम। तो बच्चे हमको आके बोलेंगे नहीं मम्मी मुझे समझ नहीं रहा है, मम्मी मैं थक रहा हूँ, तो हम तो बोलते चल जाने दे, कुछ खा ले ठीक हो जाएगा। So symptoms in children are very soft and they don't come to us with symptoms. So it is up to us clinicians and up to us as parents to understand, see the growth of our children and pick them up or take them to the doctor in time so that you detect it in time, and if there's an abnormality, we start treatment in time so that we ensure a healthy future for them. So I hope that answers the question, Dr. Beatrice. Yes, ma'am. So we understood that no age is exempt from thyroid disorders. It can happen right from newborn age to to elderly. So what about the treatment? You told us about diagnosis and when to screen for thyroid disorders in children. Our audience would like to know if there is any liquid preparation or any dispersible tablets available for kids. Yeah, that's a very interesting question, Dr. Beatrice, and I wish to God that something comes up in the near future. But as of now, we have only the thyroxine tablets which are available in our country. बच्चों में yes ये बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे तो निगल नहीं सकते गोलियां, तो हम जनरली बोलते हैं कि वो थोड़े से माँ के दूध में थोड़ा एक्सप्रेस, नवजात शिशु की बात कर रही हूँ मैं, तो माँ के दूध में जो थोड़ा सा दूध निकाल के उसमें आप क्रश करके बच्चे को पिला सकते हो, वाटी चमचा से पिला सकते हो। थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो उनको क्रश करके 1 बूंद हनी में दे सकते हैं या पानी में, एक्चुअली आदत शुरुआत से हम पानी में डालें या दूध माँ के दूध में डालें, तो जैसे वो बड़े होते थोड़े पानी में शुरू करके, एक्चुअली 4-5 ml पानी बहुत मतलब काफ़ी होता है, वो गोली को पाउडर के रूप में उसको क्रश कर लो, चम्मच में ही उसको क्रश कर लो और बच्चों को पिला सकते हैं। बट हाँ, लिक्विड प्रिपरेशन अभी तक इंडिया में नहीं है। Thank you, ma'am. So we'll go over to Dr. Subramaniam sir. Can you tell us about thyroid swelling? So what kind of test should be done in case of a thyroid swelling? वही मैं बता रहा था कि कॉमन प्रेजेंटेशन है नेक में स्वेलिंग। सो नेक में स्वेलिंग जो आता है, पहले हम करना है वो फंक्शन कैसे हैं। आगे फंक्शन के बारे में बताया था क्या क्या टेस्ट होना चाहिए, T3, T4, TSH एंड कई सिचुएशंस में T4 भी करते हैं। एंड लोग पूछते हैं ये फास्टिंग में करना है या खाने के बाद करना है, नॉट मच ऑफ डिफरेंस। एंड दूसरा है कि वो सुबह करना है शाम को करना है। शाम को TSH थोड़ा, सुबह और शाम को थोड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए सुबह करना अच्छा है। सो ऐसे फंक्शन करते हैं। फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, तो फंक्शन हाइपर फंक्शन है या हाइपर फंक्शन है। एक बार फंक्शन तो नॉर्मल हार्ट उसके डिसाइड करते हैं, उसके बाद में थायराइड का अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ द नेक। वो टेस्ट से हमें पता चलता है वो स्वेलिंग जो है किस तरह का स्वेलिंग है। हो सकता है वो थायराइड का स्वेलिंग है, दूसरा भी स्वेलिंग भी हो सकता है। सो एक बार थायराइड स्वेलिंग मानने से वो कोलाइड गोइटर है, नहीं तो कैसे तरह गोइटर है, वो सॉलिड स्वेलिंग है, सिस्टिक स्वेलिंग है, बहुत सा है, वो पता चलता है। सो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो मैलिग्नेंसी का सस्पेशन है क्या। अभी तो अल्ट्रासाउंड स्कैन में इतना पता चल रहा है कि वो मैलिग्नेंसी है या नहीं, तो ऑलमोस्ट सेटरली बता सकते हैं। एक बार वो होने के बाद उसके बाद हम पूछते हैं दे हैव टू गो फॉर FNAC।
FNAC जो सस्पिशियस नॉट उसमें करते हैं, सो FNAC करते हैं. FNAC देयर आर सो मेनी फैलिसीज और पॉजिटिव्स है, बट FNAC इतना अच्छा है कि हम जब MBBS पढ़ते रहते, थायराइड सर्जिकल ब्रांच का है, सर्जरी होना चाहिए, सर्जरी में देखते रहते थे और हर ओटी में 3-4 थायराइड का निकालते थे. निकालने के बाद पता चलता था वो मैलिग्नेंसी नहीं है. सो अभी तो ये FNAC आने के बाद पता चला वो मैलिग्नेंसी है, मैलिग्नेंसी नहीं है, और बीच में भी कुछ सस्पिशियस नॉड्यूल्स भी होता रहता है. सो वो दूसरा टेक्निक है. FNAC होने के बाद जब सस्पिशन और होने से टोटल बायोप्सी भी करते हैं, तो दैट इज अनदर इन्वेस्टिगेशन. वो इस लोग जो करते हैं जिनमें मैलिग्नेंसी का सस्पिशन है बट FNAC में इंडिटरमिनेट आया. सो ये तो एक तरह का इन्वेस्टिगेशन है. दूसरा तरह का इन्वेस्टिगेशन भी होता है जहाँ पे नॉड्यूल कहाँ पे है पता करने का. फॉर एग्जांपल स्कैनिंग करते हैं. स्कैनिंग न्यूक्लियर इमेजिंग इज अदर मोडालिटी. उसमें फंक्शन भी पता चलता है, बट अभी तो हम देख रहे हैं नॉन फंक्शनल स्वेलिंग. फंक्शनल स्वेलिंग पता करने के लिए तो वो हाइपर फंक्शन कर रहे हैं नहीं. पहले हम करते थे टेक्नीशियम इमेजिंग रेडियोएक्टिव आयन अपटेक. अभी तो जो फंक्शन हमारा जो टेस्ट वगैरह जो सिम्टम्स वगैरह उसके हिसाब से टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है. और उसमें ये न्यूक्लियर स्कैन का जरूरत नहीं है, बट न्यूक्लियर स्कैन का जरूरत इसमें है जिसमें मैलिग्नेंसी है. जो मैलिग्नेंसी हो जाता है और पोस्ट अप होता है, उसमें हमें पता करना है कि किसी जगह पे कुछ मेटास्टेसिस है, उस पता करने के लिए न्यूक्लियर इमेजिंग करते हैं. और दूसरा ये भी करते हैं CT स्कैन, बट CT स्कैन यूजुअली नॉट नेसेसरी है, बट सर्टेन कंडीशन में CT स्कैन भी चलता रहता है. सो इस तरह का थायराइड स्वेलिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फंक्शन. बाद में मैलिग्नेंसी कैंसर एक्सक्लूड करने के लिए ये सारे टेस्ट करते रहते हैं. Thank you, Beatrice. Thank you, sir. You've told us about what tests to be done in case of a thyroid swelling. Dr. Sudeep, can you tell us how do we follow up these patients with thyroid swellings? When you talk about follow-up, it means that usually you're not doing anything for the patient because the patient did not deserve anything to be done actively. The follow-up means you just come back after this one. So basically, we try to see what is the risk a patient is having. Somebody gets a thyroid swelling. क्या रिस्क है आपको, मतलब ये स्वेलिंग थोड़ा बुरा होने का चांसेस कितना है, और नॉर्मल स्वेलिंग और कुछ करने की जरूरत नहीं है सब देखने का. मतलब आपको रिस्क फैक्टर्स देते हैं कभी कभी एज का. 2 extremes of the age there can be problem. That's a problem that you can get a bad cell in the 2 extremes of age. Second thing is male or female. The males have more common neoplasm. मर्दों का थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कैंसर का प्रॉब्लम का थोड़ा ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा होता है. और कुछ लोगों का ऐसा रिस्क फैक्टर्स है, कभी कभी रेडिएशन हुआ है, मतलब शरीर में कुछ और कैंसर के लिए रेडिएशन हुआ, कभी ब्रेस्ट का और हेड एंड नेक का रेडिएशन ऐसा हुआ, तो रिस्क ऑफ हैविंग ए मैलिग्नेंसी. और परिवार में किसको भी थायराइड का कैंसर का बीमारी है तो वो लोगों का रिस्क ज़्यादा होता है. ये सब रिस्क नहीं तो वी कैन फॉलो अप द पेशेंट्स. ये एक वन क्राइटेरिया. सेकंड थिंग इज एक स्कैन बोला था डॉक्टर सुब्रमण्यम ने, बोला था एक अल्ट्रासाउंड का स्कैन. ये स्कैन का इमेजेस देखकर हमको बोल सकते हैं ये अच्छा का चांस है, या अच्छा का सस्पिशन है, या बुरा का सस्पिशन है या बुरा है. मतलब 3 different categories we can make. One is absolutely normal, where the images are the shape of the whatever you call the swelling, we call it as nodule in a medical term. वो किसका शेप कितना है, साइज कितना है, कितना बड़ा है, और इसका अंदर वो शैडोज का इमेजेस कैसा है, वो बोलता है एक्कोजेनिसिटी. और उसका अंदर का ब्लड फ्लो कैसा है, और उसका मार्जिन कैसा है, और साइड में लिम्फ नोड बोलता है. ये सब कैसे देखकर हमको बता सकते हैं अंदर नियोप्लाज्म या मैलिग्नेंसी होने का चांस कितना है. मतलब ये सब they don't mean that it's not malignant, it is malignancy. They can tell us that what is the risk of having a cancer. So when somebody is having a very smooth margin and the nodule is whatever we tell it as less than 2 centimeter, and if the echogenicity, we call it as the shades, the shadows of the this one, if it is hyperechoic, then and no, there are no lymph nodes and there are no internal flow. अंदर में ब्लड फ्लो का ज़्यादा नहीं है. रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं हमको
ये सब मिलकर ऐसा है तो स्कोर टिराड स्कोर बोलते हैं हम, रेडियोलॉजिस्ट बताते हैं। ये टिराड स्कोर बहुत कम है तो, और फैमिली में कुछ किसी भी रिस्क नहीं है, एज भी उतना रिस्क में नहीं है, और मर्द नहीं, और फैमिली में नहीं, और कुछ रेडिएशन का रिस्क नहीं है, ये सब लोगों को ऐसा बहुत छोटा वाला नोड्यूल और उसका इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा है तो वो वी कैन मेक इट एनुअल और वंस इन 2 years depending on what size we have seen the nodule and this one. So somebody is having borderline, मतलब मैंने बोला था ये शैडोज थोड़ी कभी कभी हाइपो एक है तो मार्जिन्स उतना क्लियर नहीं है, ऐसा है तो एफएनएसी करना पड़ता है। इसका क्राइटेरिया देकर एफएनएसी करना पड़ता है। एफएनएसी में भी क्लियर आ गया तो छोड़ सकते हैं, 1 साल में एक बार स्कैन कर सकते हैं। सो most of the time when it is benign, annual scans and FNAC we may end up doing once in 2 to 3 years in those who are having benign, absolutely benign characteristics and we don't have much. So those who are having intermediate, where doubt is there, then we call them within 6 months, particularly depending on how much the doubt is, and we call them to do a repeat test or the FNAC. We usually try to avoid the needle test. We don't do too often because the tracks have to heal. So between 2 tests, we try to give some weeks. Best is even giving 8 to 12 weeks gap between the previous test and better, particularly when you don't have a clear-cut malignancy and it is only coming as a indeterminate or not very clear, then we can wait for 3 months, and the risk characteristics of the patient, no family history, no radiation exposure, no environmental toxin exposure, then we can follow up the patient and tell them to come within 3 months to do the repeat test. So the follow-up will be based on what risk the patient is having and what is the likelihood of the patient having a malignancies determines the follow-up. Thank you, sir. So we have heard about how to test and a follow-up for thyroid nodules. I'll come to you, Archana ma'am. So you've told us about newborns and children. So we'll go over to the extreme. So what about the elderly? When do we screen for thyroid disorders in the elderly age group? Yes, that's again a very vulnerable and a susceptible population, I should say, Dr. Beatrice. So elderly, again, they don't come to us with symptoms as such. Symptoms can be very soft or they may not even come with symptoms. But the red flags which we need to keep in mind are, so again, the symptoms could be both of hypothyroidism or hyperthyroidism. It depends on what problem that elderly gentleman or lady is facing. So if there is hypothyroidism, then unexplained fatigue, lethargy, weight gain, mood swings, depression, loss of interest, apathy जो बोलते हैं, मतलब मन मोटा हो जाना चीज़ों से, कोई उत्साह नहीं रहना, कोई चीज़ करने की इच्छा नहीं होना, वजन बढ़ना, थकान, कमजोरी, ये सब चीज़ें हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकती है। और हाइपर में जनरली वो जो मैंने पहले कहा था कि घबराहट होती है, वजन घटता है, वो सब चीज़ें होती है। बट अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब कोई भी बुजुर्ग जिनका वजन बिना कोई कारणवश कम हो रहा है तो डेफिनेटली उनकी थायराइड की जांच होनी चाहिए। बुजुर्गों में एक और चीज़ हाइपरथायरॉयडिज्म की होती है जहाँ पर उनकी हार्ट रेट एकाएक बढ़ने लगती है, तो वो काफ़ी बार चक्कर आके गिर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फेंटिंग अटैक्स या सिंकोपल एपिसोड्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। तो जब भी ऐसे कोई बिना कारण चक्कर आके गिरना, मतलब उनकी हार्ट रेट पे ध्यान होना चाहिए, उनकी ईसीजी करके देखना है कि भाई उनकी रेट जो है बराबर सही ढंग से चल रही है, ज़्यादा हो गई है, इरेगुलर हो गई है या फिर कम हो रही है। तो ऐसे वेरिएशंस जब भी हार्ट रेट में आती है तो ज़रूर थायराइड की जांच होना चाहिए। फिर जैसे मोशंस की हैबिट, बावल हैबिट्स, जो जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो बुजुर्गों में कॉन्स्टिपेशन इज अगेन अ वेरी कॉमन थिंग, बट anybody who comes with recent unexplained constipation, definitely a thyroid. Anybody elderly who comes with recent increased bowel motions, like they're going to the bathroom 5-6 times and causing weight loss, definitely a thyroid test should be done. So there are very soft symptoms, मतलब बुजुर्गों में ध्यान रखना है कि थायराइड के सिम्टम्स इतने नहीं होते जो यंग अडल्ट्स में होते हैं। तो हमारा सस्पिशन और ज़्यादा सतर्क होना चाहिए बुजुर्गों में कि कोई भी नॉर्मल से हटके उनकी बिहेवियर होने लग गई तो थायराइड का तो जांच ज़रूर होना चाहिए उनमें। सो ये सब चीज़ें बताऊंगी। और ऑफ कोर्स गॉइटर, जैसे बुजुर्गों में, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम और डॉक्टर सुदीप ने कहा,
नोड्यूल्स होते हैं थायराइड के पेशेंट्स में। अगर बुजुर्गों में एक नोड्यूल दिख गया, जनरली नोड्यूल्स बुजुर्गों में एक कैंसर का एक चिन्ह होता है, तो अगर वो आ गया तो फिर थोड़ा सा उनकी जो सोनोग्राफी, FNAC, ब्लड टेस्ट, ये सब करना ज़रूरी होता है। तो ये सब अपने चेकलिस्ट होना चाहिए कि ऐसे कोई सिम्टम्स हो गए या कोई साइंस दिखाई दे रहे हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, फेंटिंग एपिसोड्स, इरेगुलर हार्ट बीट्स, weight gain or weight loss, depression, mood disorders, memory issues, forgetfulness. So definitely thyroid का जांच होना चाहिए इन लोगों में. Thank you, ma'am. We have a few audience questions coming in. Subramaniam sir, apart from fortified salt, is there any other food preparation available which is rich in iodine for vegetarians? You have to unmute, sir. Okay, thank you. Actually, there are so many foods which are iodine rich, actually. So most of the foods which are there in iodine rich areas, they contain sufficient amount of iodine. But when you look at the iodine deficient areas, they require a fortified or iodine extra. Otherwise, we don't need any other foods which are fortified. But commonly salt is being fortified for the simple reason that it is used by everybody. So that सारे लोग salt यूज करते हैं, इसलिए आयोडीन फोर्टिफाई किया था. वैसे तो अगर प्रिपरेशंस जो है आयोडीन का प्रिपरेशन का लेने का जरूरत नहीं है पेशेंट्स को, इसीलिए वो प्रिपेयर नहीं किया. ऐसे डॉक्टर सुदीप ने बताया था आमेड्रन में आयोडीन रहता है और ये थायरॉक्सिन में आयोडीन रहता है वैसे बोलने से. बट ऐसे कमर्शियल प्रिपरेशंस जो आयोडीन रिच प्रिपरेशंस है, वैसे पेशेंट्स का यूज करने के लिए कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, वो सही. Thank you, sir. Dr. Sudeep, our audience would also like to know about Lugol's iodine. What is the role of Lugol's iodine? I think the question came because iodine is written in it. Lugol's iodine is not for general population. अब सब लोगों को नहीं है, ये डॉक्टर्स यूज करते हैं कुछ पेशेंट्स को ये ऑपरेशन के पहले बस, और ये अस्पताल में यूज करते हैं, जनरल प्रैक्टिस में नहीं है. हाई थायराइड वालों को ये एक्टिविटी कम करने, ऑपरेशन के पहले कम करने के लिए ज़्यादा लोग डॉक्टर्स यूज कर सकते हैं, और कुछ जनरल मार्केट में वो यूज नहीं होता है, लेने की जरूरत भी नहीं है. Thank you, sir. Ma'am, our audience would like to know whether the dose of I guess they mean thyroxine. So does dose increase with age from newborn to adult? Oh, that's a very interesting question, Beatrice. So in fact, it's the other way around. Newborn babies require a little higher dose. तो जब भी हम थायराइड की डोज देखते हैं ना, एक तो पहली बात है थायराइड का याद रखिएगा डोज माइक्रोग्राम में होता है. तो हमारे काफ़ी पेशेंट डर जाते, अरे 100 पावर की ले रहे हैं, 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम ले रहे हैं. तो हमें उनको समझाना पड़ता है, भाई आप ये मिलीग्राम नहीं है, ये माइक्रोग्राम है, जो मिलीग्राम से 1000 गुना कम पावर की है. तो जनरली तो हम जब भी कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल अडल्ट में 1.6 to 1.8 माइक्रोग्राम पर केजी होता है, पर नवजात शिशु में और बच्चों में उनको ज़्यादा लगती है डोज. तो बच्चों में पर केजी के हिसाब से देखा जाए तो उनको 8 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी लगती है, और जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो डोज थोड़ा कम होता है. तो अडल्ट्स में वो 1.6 to 1.7 तक रहता है माइक्रोग्राम पर केजी. दूसरी बात है कि बुजुर्गों में, बुजुर्गों में ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उनको कम डोज लगना चाहिए, उनको हाई डोज लगना चाहिए. हम जब भी हम डोज एडजस्ट करते हैं, हम हमेशा TSH ये मात्रा जब भी आप देखते होंगे जो ब्लड रिपोर्ट्स में है T3, T4 और TSH, हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए हम हमेशा TSH को देख के आप डोज एडजस्ट करते हैं. नॉर्मल TSH का रेंज वो होता है, एज के हिसाब से रहता है 0.5 to 5. तो बुजुर्गों में हम 0 के नीचे रखना पसंद नहीं करते, मतलब वो 1 के ऊपर रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना 0 के अंदर रहे बुजुर्गों में उनके हार्ट रेट पे तकलीफ हो सकती है. तो बुजुर्गों में थोड़ा हम टारगेट्स रिलैक्स कर देते हैं, एकदम टाइट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ उसके हिसाब से ही डोज एडजस्ट किया जाता है. तो किसी को 25 लगती है, उनको जब भी बुजुर्गों में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट होता है हाइपोथायरॉइड,
तब हम उन्हें थोड़ा कम डोज से शुरू करते हैं। जैसे समझो उनकी TSH बहुत हाई है, तो हम शायद उनको पहले 25 पावर से शुरू करेंगे, फिर एक हफ्ते बाद 50 करते हैं, फिर एक हफ्ते बाद 75 करते हैं, फिर उसके ऊपर रुक के देखते हैं 2-3 महीने कि भाई उस डोज पे। सो बेसिकली अडल्ट्स इन एल्डरली पॉपुलेशन वी स्टार्ट लो एंड गो slow so that we don't expose the heart to any adverse effects of over replacement. So that's the precaution to be taken in elderly population. अब वैसे लोग ये भी समझते हैं कि डोज ज्यादा होने से डिसीज बढ़ गया, बिल्कुल डोज कम होने से डिसीज अच्छा हुआ। Yes. वो ऐसे नहीं है। शरीर के तत्व की वजह से शरीर के रिक्वायरमेंट बढ़ता है, कम होता है। ऐसे सोचना है कि ये नहीं है कि डिसीज बढ़ गया, डिसीज कम हो गया, ऐसे नहीं है। वो तो बहुत सारे लोग रहते हैं। बिल्कुल। और एक चीज है वजन, मतलब इनफैक्ट लोग सोचते हैं कि थायराइड कंट्रोल नहीं है इसलिए मेरा वजन बढ़ रहा है, पर इनफैक्ट हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट सोचते हैं जिनका वजन ज्यादा होता है उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और ये जो हैवी लोग जो है जैसे वजन घटाते हैं, कुछ कोशिश करके 10-15 किलो वजन घटाते हैं, उनकी TSH ऑटोमेटिकली थोड़े पॉइंट्स कम हो जाती है। सो ये द कंसेप्ट ऑफ वेट एंड थायराइड, इसके ऊपर पहले चर्चा भी हुई रहेगी, but that's more important also, that with increasing weight the TSH will be on the higher side, and as you lose weight the TSH will fall down a few points. Yeah, so the dose really depends on the body weight as well. True. Thank you, ma'am. So we'll take a short take-home message from each of our expert panelists. Dr. Subramaniam, sir. थैंक यू बेट्रिस। एक्चुअली आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, और जो फंक्शन थायराइड फंक्शंस के बारे में हम बताए थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग भी है। सो लोग रिपोर्ट लाते हैं और बताते हैं सर मेरा थायराइड TSH का 1 पॉइंट बढ़ गया, क्या करूं? वो एक होता है। दूसरा बताते हैं कितना क्वाइट होता है, बताते कुछ नहीं है सर, वो 10 साल से मुझे है और कुछ नहीं है, वो भी कहते हैं। सो थायराइड फंक्शन प्रॉपरली टेस्ट करना वेरी मच जरूरी है, अच्छा लैब से करना जरूरी है, और उसको इंटरप्रेट करना और इम्पॉर्टेंट है। सो ये सारे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लोग ये देख के अंडरस्टैंड करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके अच्छा रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू। Thank you, sir. Dr. Sudeep. Yeah, one thing I'd like to tell is make sure that you're not getting confused with the social media, whatever is appearing, and also your neighbors and friends may not be the right person to tell you about what is good or what is bad. Thyroid is simple if it's taken in a simple way, and the experts treat you properly. The experts will treat you properly usually. And only thing what you have to remember is when pregnancy is involved and the child is involved, better talk to the experts and meet the experts more often than staying at home. आपको ये दोनों लोग हैं, एक प्रेग्नेंट महिलाओं का और एक बच्चों का, ये दोनों लेवल में आप कुछ भी रिस्क ले सकते नहीं, क्योंकि किसी भी टाइम में क्या करना पड़ता है वो करना ही पड़ेगा, एक्सपर्ट को देखना ही पड़ेगा। दैट इज माय टेक होम मैसेज। Thank you, sir. Ma'am. Yes, as a take-home message, I would say understand, know the symptoms of thyroid problems. So when you talk of thyroid problems, it could be a thyroid overactive or underactive thyroid, which is a functioning of the gland, or it could be a structural problem of the gland where there are nodules. So understand the symptoms of hypo and hyperthyroidism, be aware, so that any symptom coming up in you or in your family member, you know about it and you will get your thyroid screened. So you do your blood test or you do your sonography. It's available easily in today's times. You don't really need a doctor's prescription. Anybody can do a T3, T4, TSH in the laboratory. It's freely available, economic, because the most important thing is early detection is very crucial in these cases, because ट्रीटमेंट स्टार्टेड इन टाइम, समय पे ट्रीटमेंट शुरू करना जिंदगी के लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं करती है। बच्चों में, बुजुर्गों में सब जल्दी से सेटल हो जाते हैं और उनकी आयु जैसे नॉर्मल मेंटेन करी जा सकती है। बच्चों की जैसे पढ़ाई होती है, शादी हो सकते हैं, उनको जो करियर बनाना है बना सकते हैं। सो इट एंश्योर्स टाइमली ट्रीटमेंट मेक्स अ बिग डिफरेंस टू पेशेंट्स हु हैव hypothyroidism or hyperthyroidism. Thank you, Beatrice. Thank you, ma'am. So today we have discussed about the different types of thyroid disorders, when to test for an underactive or an overactive thyroid gland, and why it is important to screen for thyroid disorders in pregnant ladies, in newborns, in the elderly.
And we have had interesting questions from the audience as well. And we thank you all for the interactive session that we have had today. A special thanks to our expert panelists for being with us today. And as you're all aware, January is Thyroid Awareness Month, and the Indian Thyroid Society, along with the Endocrine Society of India, is bringing you this month-long awareness program on thyroid issues. And tomorrow's topic will be everything you need to know about the thyroid. So please do log in at 7 p.m. tomorrow. And thank you all once again for joining in today. Namaste. Thank you, Beatrice. Thank you Thank very you, much. everybody. Namaste.